تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب کائنات رب ذوالجلال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور تمام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ جناب، آج رونق رمضان میں جو ہم نے ٹاپک کیا بہت ہی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے، وہ ہے معاف کر دینا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا رب ہمیں کتنے پیار سے معاف کر دیتا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے، وہ چشم پوشی کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن یہیں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کسی کی غلطی دیکھ لیں، ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیں، تو بس ہمیں تو پر لگ جاتے ہیں جناب۔ زبان کو جیسے ہم نے اڑا کے وہاں پھینک دینا ہے۔ اگر وہ ہمارے عیبوں کو ڈھک دیتا ہے، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، تو ہم میں اتنا ظرف کیوں نہیں کہ ہم بھی اسے معاف کر دیں، کہ ہم بھی اپنے ہی بھائی یا بہن کو درگزر کر دیں، ہم بھی چشم پوشی کر دیں۔ ہمارا رب تو ہمیں کئی ساتوں تک ٹائم دیتا ہے کہ اب اس کا گناہ نہیں لکھنا، اب اس کی غلطی نہ لکھنا۔ ہو سکتا ہے میرا بچہ جلدی سے مان لے، استغفار کر لے، خود آپ دیدہ ہو جائے، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، یہ 3 دن تک نہیں لکھتے، 72 آورز۔ آئی تھنک جب میرے اساتذہ یہاں موجود ہوں گے عالم دین، تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ 70 گھنٹے یا 72 گھنٹے کو یہ ٹائمنگ ہے کہ جس میں نہیں لکھتے، اور انسان کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ تو اپنی غلطی کو مان لے اور میں تجھے معاف کر دوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے جناب۔ اور آج بات کریں گے 17 رمضان، پہلا غزوہ، جس کو مسلمانوں کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو اتنی کم تعداد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں، یعنی کہ 313 مسلمان تھے صرف اس غزوے میں۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے جناب، کہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے، اور میرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ 100 ہو گئے نا تو 1000 پہ بھاری ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ پہ توکل، جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں اسے غزوہ بدر۔ آج اس پہ بھی بات کریں گے، جب یقیناً ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین موجود ہوں گے، اور جانیں گے کہ اس کی کیا خصوصیت ہے، کیوں آج کا توکل ختم ہوتا جا رہا ہے، کیوں تب کا مسلمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ 313 کے ہوتے ہوئے لاکھوں کے سامنے آ گیا تھا، اور اللہ نے اس کو کیا زبردست قسم کی جیت دی تھی، کیا جیتا تھا وہ غزوہ ہمارا جناب۔ تو اس پہ یقیناً بات کریں گے، لیکن ابھی میرے ساتھ میری بہت ہی بہترین مہمان موجود ہیں، اور میری بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی گڑیا، میری بیٹی موجود ہیں، ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ سب سے پہلے سمرین ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ اور آ جاتی ہوں میں یہاں اپنی قرآن اسٹوریز کی طرف۔ میرب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا جی، تو آج ہم جانیں گے آپ دونوں سے، میرب کیسا لگا آپ مجھے یہ بتائیں، مائک میں آپ پچھلی دفعہ آئیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو اچھا لگا قرآن اسٹوریز؟ آپ کو مزہ آتا ہے؟ بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو پہلی قرآن اسٹوری انہوں نے، جو آپ نے ٹی وی پہ شو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو اسٹوری تھی اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ وہ کون تھا جس کو جنت سے نکال دیا تھا اللہ میاں نے؟ شیطان، ابلیس کو نکال دیا تھا جی۔ تو آج ہم کس اسٹوری پہ بات کریں؟ آج اگر آپ کہیں تو میں وہاں بیٹھ کے آپ کی اسٹوری سنوں؟ بالکل، آپ اور میرب میری اسٹوڈنٹس بن جائیے اور میں بالکل اسٹوری جی، سناتی ہوں۔ یہ تو اتنا خوبصورت میں کہتی ہوں ٹائم ہے کہ قرآن سننا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت۔ تو آئیے پلیز، اور ہم محو عبادت ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی، آج ہم لوگ جو اسٹوری کرنے جا رہے ہیں، اسٹوری سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن جب ہم کھولیں تو یہ اسٹوری کہاں آتی ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے۔ جی، تو اسٹوری جو ہے اس کا ایڈریس ہے سورہ کہف۔ آج ہم سورہ کہف، جو ہماری 18th سورہ ہے قرآن میں، میرا آپ غور سے سنیں گے، میں آپ سے کویشچنز کروں گی۔ 18th سورہ ہے قرآن کے اندر، اس کا ایڈریس لکھ لیجئے۔ قرآن میں 18 نمبر پہ یہ سورہ آتی ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف۔ اور سورہ کہف کے اندر آج جو ہے بہت اسپیشل سورہ ہے، اور اس کو ہم ہر جمعے کو پڑھنے کی اس کی بہت
स्पेशल जगह है। मीरा समझ रही है ना? मैं अब सब बच्चों के साथ बात करना चाहूँगी। इस वक्त हम लोगों का थोड़ा सा बच्चों के लेवल पर होता है, लोग ये ना सोचें कि बहुत बच्चों वाली बातें हो रही हैं, इसलिए कि ये है ही कुरान स्टोरीज बच्चों के लिए क्योंकि मैं और आप तो हम लोग बचपन से ये कुरान पढ़ते आ रहे, और मेरा ख्याल है कि हम बड़ों के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ों ये के लिए एक ऐसा रिमाइंडर है जो आपको हम वक्त चाहिए होता है। जी तो सूरह कहाफ जो है उसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और ये हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए। और हम में से बेशतर लोग मुसलमान जो हैं जुम्मे के दिन सूरह कहाफ बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं, क्योंकि इस के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह कहाफ पढ़े उसका एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक एक नूर कायम रहता है। तो वो एक नूर जो है उसको हम हासिल करने के लिए हर जुम्मे को सूरह कहाफ पढ़ते हैं। सूरह कहाफ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सूरा। इसकी इंटरेस्टिंग होने की वजह ये है कि इसमें बहुत स्पेशल 4 स्टोरीज़ हैं, और उन 4 स्टोरीज में से आज हम पहली स्टोरी करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट द स्लीपर्स ऑफ द केव, जो लोग गार में जाके सो रहे थे। अब असहाबे कहाफ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहाफ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम ये स्टोरी शुरू करें, हम ये सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी उस वक्त इस कहानी के पीछे एक और कहानी थी, इस सूरत के पीछे, और वो ये थी कि जब कफ़ार मक्का, क्योंकि ये सूरत जो है ये मक्का में नाजिल हुई, जब कफ़ार मक्का ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई किसी तरीके से वो हरा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने यहूद जो वहाँ के बैड पीपल्स से ना जी, वो किसी भी तरह हमारे प्रॉफिट को हराना चाहते थे। तो जब तो वो जब नहीं हरा पा रहे थे, तो अब देखते हैं क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ के ज्यूज़ और क्रिश्चियंस जो उस वक्त के थे, जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से पहले किताबें आ चुकी थी, उनको कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि आप हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएं जो हम मोहम्मद से करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे हम ऐसे सवाल करें कि वो उसका जवाब ही ना दे सकें, वो आपकी किताबों में वो बड़े मुश्किल से सवाल भेजें। तो उन्होंने उनको 3 क्वेश्चंस भेजे थे। पहला क्वेश्चन था कि असहाबे कहाफ कौन थे, दूसरा क्वेश्चन था रूह के बारे में क्या आप जानते हैं, और थर्ड क्वेश्चन था कि ज़ुल्क़रनैन कौन था। तो आज हम पहले क्वेश्चन के जवाब में, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें कल जवाब दे दूंगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इस बात की भी याद दहानी कराई, क्योंकि अगले ही दिन वही नहीं आई, और उसके कुछ दिन के बाद जिब्राइल अमीन जो हैं वो वही लेके सूरह कहाफ लेके नाजिल हुए, और असहाबे कहाफ का वाक़या हमारे लिए आया। और सूरह कहाफ की एक और फजीलत ये भी है कि पहली 10 आयतें जिसको याद हों वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चे मुझसे बहुत शौक से सुनते हैं, मगर वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, इंशाअल्लाह किसी और वक्त कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी पर। असहाबे कहाफ कहते हैं एक ऐसे गार को जो कि बहुत बड़ा हो, अंदर से पूरा चैम्बर हो, खुला हुआ हो, हवादार हो। गार एक छोटा गार होता है और कहाफ एक बड़ा गार होता है। इट्स लाइक अ हॉल, लाइक अ चैम्बर, ठीक है। तो वो एक खुला गार था जो अंदर से हवादार भी था। अच्छा जी, ये कौन लोग थे जो असहाबे कहाफ कहलाए? जनाब, ये कई 100 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से भी कई 100 साल पहले कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 62 के बाद का दौर है, जब आप हज़रत ईसा उठा लिए गए थे। उसके कोई 100 साल के बाद की ये वाक़या है, और ये एक शहर था इफ्सुस के नाम से, जहाँ रूमी सल्तनत थी, और वहाँ पर रहने वाले ये लोग थे। अभी ईसाइयत में जो है तौहीद थी, अल्लाह का एक माना जाता था, अल्लाह का एक उनका जो ट्रिनिटी ऑप्शन, हमारा तो अकीदा भी यही है ना कि दुनिया कायम ही तब तक रहेगी जब तक एक रहेगा हिदायत करने वाला। लेकिन वहाँ पर बिगाड़ आना शुरू हो चुका था, और ये जो रूमी हुकूमत थी, यहाँ पे ग्रीक गॉड्स थे, बुत थे, जिनकी ये लोग पूजा करते थे। अब ये जो लोग थे जिनको असहाबे कहाफ का टाइटल दिया गया, ये बहुत ही अच्छे इलीट क्लास के पढ़े लिखे पैसे वाले लोग थे, ठीक है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये जो महलों में हर वक्त आने जाने वाले रहने वाले लोग थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट दे दिया था। उनको ये एहसास हो गया था कि ये जो इतने सारे बुत हैं, इनको मानना कोई सही चीज़ नहीं है, तो मैं किसको मानूँ? अल्लाह तो एक ही होना चाहिए, खुदा तो एक ही होना चाहिए। उनके दिल में बस एक ये कॉन्सेप्ट आ गया था, और ये उन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त का जो बादशाह था, कहा जाता है उसका नाम दकियानूस था। बहरहाल कुरान कहता है कि इन सब बातों में ना पड़ें, आप लेसन पर आएँ कि क्या था। तो बादशाह जो था वो बड़ा ही जालिम था, और अगर कोई भी उसके सामने ईसाइयत का दावा करता था या अल्लाह एक होने का दावा करता था, तो वो उसको सारी ज़िंदगी के लिए जेल में डलवा देता था, या चौक पे खड़ा करके जिंदा जला देता था, और बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। जल्दी से पूछो, रुकी आपके लिए।
जो आप हमको बता सकते हैं जो हमारे नबी थे, जी जी, वो जो बुरे लोग थे, अल्लाह मियाँ ने उनके साथ क्या करा? जी जी, अभी आप सुनती वो रही भी कहानी, बताएंगे। इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। जी जनाब, वो भी बताएंगे कि उन कुफार के साथ क्या हुआ। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और असहाब कहफ की ये जो पूरी कहानी है, इतनी खूबसूरती से ये हमें सुना रही है, वो सुनते हैं और अपने दिमागों को मज़ीद फ्रेश करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और अब चलते हैं दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं अपनी स्टोरी की तरफ वापस। हम बात कर रहे थे कि वो जो लोग थे उनके दिल में अल्लाह ताला ने तौहीद दे दी थी, यानी कि उनको पता था कि खुदा तो बस एक ही है। ये सारे जो ग्रीक गॉड्स हैं, ये स्टैच्यूज, बुत जो हैं, इनको हम नहीं पूजेंगे, हमारा खुदा तो बस एक ही होना चाहिए। अभी इन्होंने अपना जो अकीदा है ये छुपा के रखा था क्योंकि बादशाह बहुत जालिम था। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा इनके इस साल में, उस शहर का नाम कहा जाता है कि इफ्सुस था, और उसमें साल में एक दफ़ा बहुत बड़ा एक ग्रैंड किस्म का उनकी देवियों का और बुतों का एक मेला लगा करता था। तो उसमें बादशाह ने भी वहाँ आना था और बादशाह ने आकर के इनाग्रेशन करनी थी उस किसी बड़े बुत की, बड़ी देवी की। तो जब बादशाह वहाँ आया तो उसने कहा, सबको कहा कि अब सबने सिजदा करना है, तो उन्होंने सिजदा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि खुदा तो एक ही होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया कि हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था और उन्होंने इस बात को नहीं माना। अब चूंकि वो बड़ी अच्छी फैमिली के थे तो बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उस वक्त उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि तुम लोग अभी जवान हो, क्योंकि वो बहुत यंग लोग थे, दे वर ऑन वेरी यंग एज। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं फितियतुन, फितिया कहते हैं बहुत यंग एज को, तो वो बहुत यंग एज के थे। तो बादशाह ने कहा ठीक है बेटा, तुम अभी थोड़ा टाइम ले लो, तो मैं 2-3 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तुम फिर भी नहीं माने तो फिर हम तुम्हारे साथ फिर हशर करेंगे, तुम्हारा कोई फैसला करेंगे। अब जनाब जब उनको टाइम मिला, वो सब आपस में दोस्त थे, उनको जब टाइम मिला तो वो निकल गए और उन्होंने कहा हम अपने घरों में नहीं रहेंगे। सो व्हाई डिड दे लेफ्ट देयर होम्स? बिकॉज दे वांटेड टू गो अवे फ्रॉम ऑल दिस, ये जो देवी देवता और वो थे, और वो चाहते थे कि वो एक अल्लाह के उस पे कायम रहें। अपने ईमान को उन्होंने सौदा नहीं किया, अपने ईमान को नहीं। और जब हम अपने ईमान का सौदा नहीं करते ना, तो हमारा जो रब है ना, फिर वो हमारी हिफाजत करता है। बेशक बेशक। और हम देखेंगे कैसे अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत करी और कैसे हम तक आज तक इतना ये किस्सा आज तक पहुँच रहे हैं हम तक। अच्छा जी, अब जब वो जा रहे थे रास्ते में, अच्छा इस पर भी लोग बहस करते हैं कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और वो 4 थे और 5वां उनका कुत्ता था। कुरान कहता है कि तुम इस बहस में ना पढ़ो कि वो कितनी तादाद थी। इररेलेवेंट चीज़ों को कुरान कहता है एक साइड पे कर दो। और अब आ जाए इस बात पर, कुरान कहता है कि वो कह क्या रहे थे, जब वो जा रहे थे तो वो कह क्या रहे थे, और उनकी वो दुआ जो है वो उनकी ज़बान में थी, मगर अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज में करके हमें अरबी में वो कुरान में वो दुआ दी कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे रब हमारे लिए अपनी ख़ास पास से, अपनी बहुत स्पेशल कुर्बत से रहमत अता फरमा। कि एक लदुन का कहा, इंदा का नहीं कहा। इंदा का होता है करीब, लदुन का होता है वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल हो। हाँ। और उसको हय्यि लना, और हमारे लिए मुहैया कर दीजिए, हमें अता कर दीजिए, मिन अमरिना हमारे काम में, रशदा हिदायत, गाइडेंस। तो हम उन्होंने गाइडेंस मांगी। अभी ये रास्ते में, अब सोचो वो कितने अच्छी फैमिलीज के लोग थे, लग्जरीज में रहने वाले, पैसा भी था, फेमस भी थे, पॉपुलैरिटी भी थी, मगर वो सब कुछ दिल छोड़ में जो था ना, वो रब की मोहब्बत उतर गई थी, उतर गई है जिसने सब कुछ बनाया। अल्लाह ताला ने कहते ना वो पिला दी थी उनको, कि उनके रग रग में थी, कि जिसकी खातिर उन्होंने अपने घर छोड़े। और कहाँ जा रहे हैं? गार में जा रहे हैं। और गार में क्या होगा? ना बिस्तर होगा, ना आसाइश होगी, कोई लग्जरी नहीं होगी। अब वो गार में जा रहे हैं, और गार में जाते हुए वो ये दुआ करते जा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करी। और जैसे ही वो गार में गए, अब उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हाँ भाई अब ऐसा करेंगे, एक एक करके छुप के जाया करेंगे और हालात लेकर के शहर से आया करेंगे कि अब क्या चल रहा है, और कोई नहीं जाएगा ना, मतलब छुप के रहेंगे। वो गए हैं और उनको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनके कानों पे ज़रब लगा दी, उनके कान बंद कर दिए और उनको सुला दिया कई सालों तक। अब उनको कई सालों तक सुला दिया और वो सोते रहे। और वो जब वो सो रहे थे तब भी कहते हैं कि उनकी आंखें खुली हुई थी। वो कुत्ता जो सो रहा था गार के बाहर, उसकी भी आंखें खुली हुई थी। और
وہاں سے گزرنے والے کو ایسا لگتا تھا, کچھ ہیبت سی آتی تھی, خوف آتا تھا, کوئی وہاں سے گزر بھی رہا ہو تو وہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ غار کے اندر جانا. اور غار ہوادار تھا, اس میں سورج کی روشنی آنکھوں تک نہیں آتی تھی, اور ان کو بہت سہولت ہوتی تھی, ان کو نیند میں بہت کمفرٹیبل رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے, ان کو کروٹیں بھی دلایا تھا اللہ تعالیٰ, اور وہ سوتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھ کھلی, اور اب 300 سال گزر چکے تھے. How many years? 300 years. 3 سینچریز گزر چکی, 3 سینچریز گزر چکی جی. اور اب وہ اٹھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے, تو وہ کہتے ہیں شاید آدھا دن, اور اگلا ایک اور کہتا ہے شاید 1 دن پورا سو گئے, تو وہ تیسرا کہتا ہے کہ اللہ کو بہتر پتا ہے, اس پہ ہم کیا بحث کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو بہت دھیان سے جانا, اور اس کو سکہ دیتے ہیں, اور دیکھو بھوک لگ رہی ہے, جو کرنسی تھی کوائن, وہ اس کو ایک کوائن دیتے ہیں, سلور کوائن, اور اس سے کہتے ہیں بہت دھیان سے جانا, اور جا کر کے نا کھانے کے لیے کچھ اچھا سا لے کر کے آؤ, اور بہت دھیان سے نا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو. اب جب سوچیں وہ 300 ایئرس کے بعد وہ کیو سے اتر کے واپس شہر میں جائے گا, تو اسے کتنی چینجز ملی ہوں گی, سب کچھ بدل گیا جی, اس سے سب کچھ بدل گیا. وہ حیران ہو کے دیکھ رہے کہ یہ کیسے لوگ ہو گئے, لوگوں کے لباس بدل گئے, اور سب سے زیادہ یہ کہ اس وقت جو دیوی دیوتا تھے وہ سب ختم ہو چکے, وہاں پر بھی عیسائیت آ چکی, کرسچینٹی اب آ چکی, اور وہاں پر وہ جا کر کے جیسے ہی اپنا وہ سکہ دکاندار کو دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے, کیونکہ 300 ایئرس اولڈ کوائن ہے, اور جیسے ہی وہ اس کو دیتا ہے تو وہ کوتوال کو لے کر کے آتا ہے, اور کوتوال سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی مجھے معاملہ خراب لگ رہا ہے. وہ اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں, بادشاہ کو وہ بتاتے ہیں کہ میں اس طرح سے ہم لوگ وہ ہیں. تو جب بادشاہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنے پرانے, کیونکہ ان کی ساری جو ریکارڈز تھے وہ ان لوگوں کے پاس سالوں سے چل رہے تھے کہ یہ نوجوان غائب ہو گئے تھے, تو وہ یقین نہیں کرتا, اور وہ پھر ان کے ساتھ واپس غار کی طرف جاتے ہیں بادشاہ. اور جب وہ غار میں جاتے ہیں تو وہ واپس اندر جاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ جو ہے اصحاب کہف میں سے وہ جاتے ہیں اندر, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کی روح قبض کر لیتے ہیں. اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. یعنی کہ ہم جب مر جائیں گے 300 ایئرس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس سٹوری میں ہمیں دکھایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے ساری سائنس فیل کر سکتا ہے کہ وہ 300 سال تک بالکل صحیح سلامت سوتے رہے, اور ان کے جسم کو بھی کچھ نہیں ہوا, ان کی ہر چیز سب چلتی رہی. آپ کو سمجھ میں آیا امیر؟ اب میں کوشچن کروں؟ ٹھیک ہے. تو میں نے ایک بتایا تھا کہ کہف ایک غار ہوتا ہے, کون سا غار ہوتا ہے وہ؟ It's like a big chamber. بگ چیمبر, جی بہت بڑا سا ہال ہوتا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب آپ نے اور ساری اسٹوری کی چیزیں بھی سننی. اور کتنے سال تک وہ لوگ سوتے رہتے؟ 300 years. Yes, more than 300 years. 300 very good, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنی محنت سے, اتنی خوبصورتی سے, اتنی پیار سے, اتنے سجا کے ایک اسٹوری کو لے کر آتی ہیں کہ وہ دیکھنے والے کو بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بہت خوبصورتی سے سمجھ آتی ہے جناب. امید کرتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, لیکن آپ کے دل پہ کہیں نہ کہیں یہ بڑے سیگمنٹ کی طرح سجتا ہوگا. لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونق رمضان میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور اب مجھے میرے استاد, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج 2 حوالوں سے ہماری گفتگو رہے گی, کہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی, اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے معاف کر دینا, جی ہاں معافی کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی. اس کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے مفتی ارشاد حسین سعید صاحب کو, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو رونق رمضان میں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک بہت ہی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ ینگ بچے مجھے ایک الگ روپ میں دکھائی دیتے ہیں. یقین مانیے, کیونکہ ہم نے بچوں کو ارشاد صاحب دیکھا ہے بدنام کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, ہر وقت فون ہاتھوں میں رہتے ہیں, ہر وقت موبائل ان کے پاس رہتے ہیں. ان کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ دین سے کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے ایسے ہی اپنی ینگ جنریشن سے آپ کو ملواتے ہوئے. جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہیں سید اشن حسن, جو کہ بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں اور خوبصورت آواز کا مالک. اور اشن مائک اٹھاؤ بیٹے, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی کیا ایج ہے میرے بچے؟
میری 20 ایئرز ایج ہے. ماشاءاللہ 20 ایئرز اولڈ. اچھا تو آپ نے باقاعدہ سیکھا؟ نہیں, مجھے بچپن سے شوق ہے, کافی جگہوں پر اسکول میں پڑھتے تھے؟ بالکل, اسکول میں کمپٹیشنز وغیرہ کافی جیتے ہیں میں نے. تو بس پھر ہم تو سونو بھائی نے پڑھ دی, تو پھر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رب کا نام لیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو, تو اس کے بغیر تو محفل ہی ادھوری ہو جائے گی. تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ کی نعت آتے ہیں, پھر سر آپ کی اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی ٹھیک. جی بیٹے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے, حضور ایسا بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, शाद हुसैन साहब की तरफ। ग़ज़वा बदर, पहला ग़ज़वा जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। मुसलमान 313, वहाँ हज़ारों का लश्कर था और रब ने कह दिया था कि तुम 100 भी होगे तो हज़ारों को के ऊपर तुम्हारी फतह होगी। तो ये जो रब का तवक्कल है ना, उस वक्त तो हमें मुसलमान पे दिखता है। उसके हवाले से जानेंगे आज के मुसलमान को क्या हो गया। रब तो वही है, तो हमारा तवक्कल कहाँ जा रहा है? बहुत अहम सवाल है और हमें सोचना होगा। और मैं इसको एक शेर की सूरत में पहले इख्तिसार से यूँ बयान करना चाहूँगा। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अब भी। बेशक। तो वो जो फ़ज़ाए बद्र थी वो क्या थी? वही आका अलैहिस्सलाम की तरबियत, सोहबत और आपकी कमांड में जाने वाले सहाबाए किराम का इखलास था, उनका तवक्कुल था। वो असल ताकत हथियार की नहीं थी, बल्कि वो असल ताकत ईमान की थी। जिस ईमान, ईकान और यकीन के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, वही असल ताकत ही मोमिन का हथियार है। और उसके मुकाबले में जब भी कोई बातिल खड़ा होगा, चाहे वो असलहा से लैस हो, चाहे माल और दौलत की फरावानी हो, चाहे उसके पास असबाब की कसरत हो, कुछ भी हो, उसके सामने हर शय खसो खाशाक की तरह बह जाती है। वही मोमिन का असासा है। ग़ज़वा बद्र जो है वो चूँकि हक़ और बातिल का सबसे पहला मारेका है, और इसकी अहमियत को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसको एक टाइटल दिया है, यौमुल फुरकान। फरमाया ये हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन है। इसने हक़ को हक़ करके दिखाया और बातिल को बातिल दिखाकर ज़लील और रुसवा कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बद्र के कई पहलुओं को मुख्तलिफ मुकामात पर बयान फरमाया, और एक मुकाम पर फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे। अब वो जो मदद थी, उस मदद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेबद्रिन इसके साथ फरमाया, वो मदद मैंने बद्र में फरमाई। अब मदद तो उसकी हर लम्हा मोमिन के साथ रहती है, मगर बद्र को क्यों स्पेसिफाई किया? वो इसलिए किया कि भी यहाँ तक पहुँचना तुम्हारा काम है, आगे तुम्हें मंजिल तक पहुँचाना ये अल्लाह की मदद और नुसरत का काम होता है। अगर हम वो बुनियादी तकाज़े ही पूरे न करें, देखिए आका अलैहिस्सलाम या सहाबाए किराम ने ये एक्सक्यूज़ नहीं किया कि हम उनके खिलाफ कैसे लड़ें, हमारे पास माल कम है, हथियार कम है, असबाब कम है, तो हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो उनके बस में था, जो उनकी इस्तेतात में था, वो सारी जमा पूंजी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकर मैदान बद्र में तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, बरी ताला अगर आज ये मिट गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात भी कोई नहीं कह सकता अल्लाह को कि तेरा नाम लेना इन्हीं पर डिपेंड करता है और इनके अलावा नहीं होगा। मगर वो आका अलैहिस्सलाम का लाड था, इजहार मोहब्बत थी, रब से मनवाने का अंदाज था। तो अल्लाह ने 5000 मलाइका को भेजा और अपनी मदद की कई और सूरतें नाजिल फरमाई, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। तो हमें ज़रूरत है कि आज हम भी वो तकाजे पूरे करें जिनका हमें मुकल्लफ बनाया गया है, और नतीजा और उस मंजिल तक पहुंचना ये अल्लाह की मदद नुसरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद अगले उसमें सेगमेंट में आते हैं जब हम अपनी जो असल टॉपिक भी है माफ़ी उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सोनू क्योंकि यहाँ मौजूद हैं और आज सोनू हमारे साथ इनका ये चले जाएंगे, अब लाहौर के इनकी ट्रैवलिंग है, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते ये इनकी आवाज़ से जितने हम फैज़याब हो सके वो भी हों, प्लीज़। खश खश जिन्ना कदर ना मेरा, मेरे साहब नू वड्डियां मैं गलियां दा रूड़ा
मैनू महल चढ़ाया साया मैं लजपाला दे लड़ लगियां मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे दो गम परे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लजपाला दी मंगतियां मैं लजपाला दी मंगतियां मैं मौला अली दी मंगतियां मैं लजपाला दी मंगतियां मेरे पल्ले परे रहंदी मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे दो गम परे रहंदी ज़ेब नहीं देंदा छड़ जाना गणहारा वसदी चौक समझ के आ गए शाला लगियां रैन बहारा दुआ मंगिया करो संगियों किते मुर्शद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियों किते मुर्शद ना रुस जावे जिना दे पीर रुस जावन जिना दे पीर रुस जावन ओ जूंदे जी मरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे दो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे दो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे दो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे दो गम परे रहंदे मेरे दो गम परे रहंदे मेरे दो गम परे जिए जिए मौला बादो शाद रखे आपको। क्या बुलंद आवाज़ है आपकी बेटे, और मौला ऐसे ही बुलंद आवाज़ रखे। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान में जो आवाज़ें निकलती हैं, अशर हो आप हो,
مولا ان کو اسی طرح باد و شاد رکھے, آپ کے دلی مرادیں پوری کرے. یہ دعا نکلتی ہے یقین مانے دل سے, جب ان بچوں کو میں اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں نا بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب اور اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونق رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی ارشاد حسین سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں, اور بات ہو رہی تھی اس سے پہلے غزوہ بدر کی, اور اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, معافی. اگر ہم اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کتنی دفعہ ہماری کتنی ہی غلطیوں پہ چشم پوشی کرتا ہے, درگزر کر دیتا ہے, فرشتوں کو روک بھی دیتا ہے, ابھی مت لکھنا, غلطی کر بیٹھا ہے, نادم ہو جائے گا, آنسو بہائے گا, مغفرت مانگے گا, میں معاف کر دوں گا. ہم انسان کسی کی غلطی دیکھیں یا ہمارے ساتھ کسی کا کوئی رویہ ایسا, ہم معاف نہیں کرتے. شاہ صاحب کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو مسعود انصاری ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے غلام کی کسی غلطی پر اسے مار رہے تھے. تو اتنے میں پیچھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اور آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس غلام پر ہے اس رب کو تمہارے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ اختیار ہے. بس یہ جو آپ نے فرمایا, اور صحابی نے مڑ کر پیچھے دیکھا, آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے, وہ کانپ گئے, اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد مارنا تو کیا, میں انہیں آزاد کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو امکان تھا اس بات کا کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا. اللہ. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آقا علیہ السلام کی اس تعلیم سے کہ ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے, اور ان سے جہاں کہیں غلطی اور خطا ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. جب ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کے بارے میں اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں, اور ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس ہستی کا جنہوں نے 13 سالہ مکی دور کی ساری اذیتیں, تکلیفیں, مصائب اور آلام, پھر کم و بیش 8 سالہ ہجرت کے بعد کی غزوات بھی ہیں, جنگیں بھی ہیں, کفار اور کفار مکہ کی طرف سے سازشیں بھی ہیں, اور اس سب کے باوجود جب آقا علیہ السلام کم و بیش 20 سال بعد مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے, اور آپ کے سامنے بڑے بڑے وہ لوگ کھڑے تھے جو ساری زندگی حضور کی اور اسلام کی دشمنی کرتے رہے, اور آج آقا علیہ السلام کس فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے, اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. بلکہ اس سے قبل آپ نے ان سے پوچھا کہ اب تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا بیہیو کروں گا. تو پھر ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ کریم ہیں, ابن کریم ہیں, شریف ہیں, شریف کے بیٹے ہیں, اور آپ خاندانی نسب والے ہیں, آپ معاف فرمائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ نہیں لگایا, فرمایا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے, میں نے تمہیں معاف کر دی. تو آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں معاف کرنے کے اتنے واقعات ملتے ہیں, مگر اس میں یہاں ایک فرق ضرور بیان کرنا چاہوں گا. اس معافی کا تعلق ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات کو پہنچنے والی تکلیف اور اذیت کے ساتھ. اگر آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, آپ کرسی عدالت پر بیٹھے ہیں, یا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جگہ کا والی اور اختیار والا بنایا ہے, اور آپ نے وہاں 2 لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے, وہاں آپ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور جو کسی آدمی نے آپ کو ذاتی طور پر نقصان پہنچایا, تکلیف پہنچائی, اسے آپ معاف کریں, اور معاف کرنے کا آپ کو حق ہے, اور وہ معاف کرنا فضیلت ہے. لیکن کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے, تبھی کہا کہ مومن کی معراج ہے, تو وہاں پر نرمی نہیں, وہاں پر سختی سے اس مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا, وہاں یہ تقاضا بنتا ہے. لہٰذا ہر چیز کو اپنے اپنے محل اور جگہ پہ رکھیں, تو یہی ہمیں اسلام کی تعلیم ہے. صحیح. تو اس کے جو درگزر کرنے کے اخروی اجر ہے, وہ تو ایک بڑا اجر ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو رب کہتا ہے تو نے اس کو معاف کیا,
اب چھوڑ دے کہ جو میں تجھے عطا کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کے اوپر حیا آتی ہے کہ یہ بندہ ہو کر دوسرے بندوں کو معاف کر رہا ہے, صرف اس کی ہے اور میں رب ہو کر اسے معاف نہ کروں. اور اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت ایک ارشاد فرمائی قرآن مجید میں غفور, پھر ایک صفت ارشاد فرمائی اسی طرح غفار, اور غفار مبالغے کا صیغہ, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا. تو آپ سوچئے انسان جتنا خطا کا پتلا ہے, اگر وہ حساب لینے پہ آ جائے تو کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب پیش کر سکے. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا ربی کبھی بھی اپنے عدل کے سائے میں نہ رکھنا, کیونکہ تیرا عدل تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے نفس پہ اتنا گناہ کیے ہوئے ہیں نا, ہم نے اپنے نفس کو اتنا تباہ کیا ہوا ہے کہ بس تیرا عدل نہیں سنبھال سکتے. اپنے فضل کے سائے میں رکھنا, کیونکہ یہ فضل ہی جو ہے, تیری رحمانیت ہی جو ہے ہمیں آگے لے کے جائے گی. اور ہم واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا. میں چاہوں گی اشر آپ ایک نعت کے چند اشعار اگر آپ پلیز. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. رحیم رونق رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی طرف آتی ہوں, رہنمائی چاہتی ہوں کہ کیا صرف وہی انسان درگزر کرے جس کے پاس قدرت ہو, جس کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہو کہ جب میں معاف کر دیا, یا یہ معمول کا ہمیں اپنے اندر ایک عمل پیدا کر لینا چاہیے کہ اچھا ہو گیا معاف کر دی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم یہ پیدا کر سکتے ہیں. ایک آج کل کی نوجوان نسل کے حوالے سے بھی ضرور ان کی رہنمائی فرمائیے گا کہ کس طرح وہ اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کر سکتے ہیں کہ درگزر کر دیں, معاف کر دیں. جی
देखिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक दिन सहाबा किराम को, फरमाया कि पहलवान किसे कहते हैं? ताकतवर। बेशक। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो एक तो ये है जो इंट्रोड्यूस्ड है सोसाइटी में, दुनिया में। फरमाया एक मैं तुम्हें बताता हूँ, पहलवान और ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर ज़ब्त कर ले। तो अगर हम ये चीज़ें सीख लें कि हमने अपनी अखलाकियात को किन बुनियादों पे खड़ा करना है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपने ऑफिस में, अपने घर में, फैमिली में, आइज़ा व अकारिब में ऐसे रवैये फेस करने को मिलते हैं कि जिस पर फौरी तौर पर इंसान रिएक्ट करने को आ जाता है, रिएक्शन में आ जाता है। और उस रिएक्शन में फिर वो गुस्सा भी होगा, उसमें इंतकाम भी होगा, उसमें ऐन मुमकिन है बदजुबानी भी हो, उसमें ऐन मुमकिन है तलख कलामी भी हो, उसमें ऐन मुमकिन है आगे किसी का हक मार देना भी शामिल हो जाए। तो ये चीज़ें जब हमारे उस रद्द अमल का हिस्सा हो जाती हैं, अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें मुआफ़ करने की जो आदत है उसे अपनाना है। और वो तब होगा जब हम पहले अपने आप पर ज़ब्त करेंगे, और ज़ब्त करके जब हम देखेंगे हालात को, तो वो सारे हालात और वाक़यात आपके सामने बदल जाते हैं। और घरों में और फैमिली में और कोलीग्स में भी, सोसाइटी में देखें एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाती है, हम उस पर इतना बड़ा रिएक्ट देते हैं जो बनता नहीं है, जो बनता नहीं है। और ये अभी पिछले दिनों एक बड़ी मारूफ जुमला एक किसी साहब का मेरी नज़र से गुज़रा कि वो किसी को ये स्पीच दे रहे थे मोटिवेशन के तौर पर कि जी ये हम आम तौर पर जो कहते हैं जी मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर तो अगले ने सही बात को ही तो बर्दाश्त करना, अगर अगले ने सही बात करनी है तो आपने उससे क्या बर्दाश्त करना है, वो तो सही हो गई। वो तो बात ही लिहाजा जब ज़ब्त नफ्स की तालीम हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मिलती है, वो उसी पर होगी जो आपके सामने कोई नामुनासिब शय हुई। तो आपका इम्तिहान वहीं पर होता है कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आप हर्ट हुए, आपको तकलीफ़ पहुंची, ज़ाती दर्जे में या कोई नुकसान पहुंचा। अब आप वहाँ कैसे मुआफ़ करते हैं, कैसे हुस्न सलूक का मुजाहरा करते हैं। और इसका कोई ख़ानदानी और माशरती तौर पे भी कोई असर आता है कि मतलब अगर मैं हूँ, फ़र्ज़ करें मेरी नेचर में है माफ़ कर देना, तो मेरी औलाद के ऊपर भी इसका कोई असर आएगा? यकीनन इसके देखें, आज मेडिकल साइंस कहती है कि जीन्स जो हैं वो कैरियर होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, खुसूसियात के। ये चीज़ें जीनियाटिकली भी आती हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर इन्हिसार होता है घर की तरबियत पर। कि अगर घरों का माहौल हम ऐसा बना लें कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी जहन साजी करें, उनके एटीट्यूड को डेवलप करें, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को हम पैदा करें, अगर उन्हें पहले दिन से ही इस रास्ते पर लगा दें, जैसी सोसाइटी हम देखना चाहते हैं वैसे ही हम अपने फूलों को वैसा संवारना शुरू कर दें, तो ये मैं समझता हूँ कि घर के माहौल और तरबियत के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं जी। मेरा बाप भी गुस्सा करता था, दादे को भी गुस्सा आ गया था, वो ये वाक़या हुआ था, हमारा ख़ानदानी मसला है, गुस्सा कर लेना ख़ानदानी। तो सवाल ये है कि अगर उस ख़ानदानी चीज़ के बारे में आप एडमिट कर रहे हैं कि ये नामुनासिब है, तो उसे रिफॉर्म कब करना है, उसे ठीक कब करना है। तो और अगर हम देखें शाह साहब, तो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत की हमारी ढेरों ऐसी मिसालें हैं जी, जो हमें दिखाई देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में आता है कि एक खादिमा आपके लिए पानी लाई और वो गिर गया। तो आप उसने देखा कि ऐन मुमकिन है कि आपको जलाल आए, तो उसने फौरी तौर पर ना कुरान मजीद की आयत पढ़ दी और उसने कहा कि वल काज़िमीन अल गईज़ा, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं अल्लाह वाले। तो फिर आपने यूं ही लफ्ज़ सुना, फिर वो अपनी कैफियत को भूल गए भी अल्लाह का हुक्म क्या है, वो उसने याद करा दिया। तो आपने फिर फौरी अनाउंस किया, ऐलान फरमाया मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से को पी लिया। फिर वो वहाँ रुकी नहीं, उसने अगला लफ्ज़ पढ़ दिया वल आफ़ीना अनिन नास, और वो लोगों को मुआफ़ भी कर देते हैं। गुस्सा तो आपने पी लिया लेकिन दिल से मुआफ़ नहीं किया। तो आपने फरमाया कि लो मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। फिर उसने अगला लफ्ज़ पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। फरमाया जाओ मैंने एहसान भी किया, तुम्हें आज़ाद कर दिया। अब उसकी एक गलती उसके लिए कितने बड़े बेनिफिट का सबब बन गई। ये वो ज़ब्त नफ्स है कि हम लोगों को रिएक्शन देने की बजाय अगर अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत से रंग लें, तो फिर हमारे रवैये कितने खूबसूरत हो जाते हैं और उन रवैयों के फिर असरात कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। जनाब लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी रौनक रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन को इसी तरह आगे लेके चलते हैं।
बहुत। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना, आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं, आदिल गए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, गैर को देखा ना गैरों की नजर देखी है, मेरी नजरों ने फकत तेरी नजर देखी है, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, जिस जा नजर आते हो सजदे वही करता हूँ, जिस जा नजर आते हो सजदे वही करता हूँ, सजदे से मुझे मतलब, सजदे से मुझे मतलब, काबा हो या बुतखाना, सजदे से मुझे मतलब, काबा हो या बुतखाना, सजदे से मुझे मतलब,
काबा हो या बुत खाना सजदे। और बहुत ही काबिल गौर, जी चाहता है तोहफे में भेजूं ने दो आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं ने दो आंखें। दर्शन का तो दर्शन है, दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना 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 बेखुद किए देते हैं, अंदाज है जाबाना बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, ये इश्क की जो इंतहा है ना, ये रब से अलग अंदाज में आपको कहीं लेके जाती है, और हर एक का अपना अंदाज है बयान का। हर लिखने वाले ने अपने अपने अंदाज से उस इश्क को बयान किया है। और ये क्या खूबसूरत, मुझे पता नहीं क्यों ये सुनते हुए ही कलाम लग रहा था कि वो जब मेराज पे रसूल खुदा गए और वो जो एक झलक देखी, और उसके बाद कि वो उसके बाद से जो ये एक कैफियत है ना, आप कैफियत को लेके ही कलाम में ढालते हो। लेकिन इस कलाम बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मौला आपको सलामत रखे। वापस आते हैं जनाब अपने प्रोग्राम की तरफ, और क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है तो आप सबका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सोनू, आपका, आपकी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी डॉन की टीम की तरफ से। हमें थोड़ा थोड़ा इन्होंने तंग भी किया है बच्चों ने लेकिन हमने भी इन्हें काफ़ी तंग किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबके यहाँ होने का। मौला तुम सबका आना, तुम सबका यहाँ इस महफिल में बैठना कबूल फरमाए, आमीन। सर, आखिरी नोट पे बात करते हुए जाते हैं कि माफ़ी को लेके कोई एक पैगाम हमारे देखने वालों के हवाले से भी को भी दीजिए, और ग़ज़ब बदर के हवाले से भी आपने कहा था, मैं एक मिसाल देता हुआ जाऊँगा। जी, यकीनन हमें अपने रवैयों के अंदर इस खूबसूरत अखलाकी कदर को शामिल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुआफ़ करना। और जब कोई शख्स मुआफ़ करता है तो उसे दिल का सुकून बहुत हासिल होता है, और वो सुकून जो है वो अल्लाह की रहमत के नुज़ूल के सबब होता है। अल्लाह ताला खुश होता है जब कोई बंदा दूसरे बंदे के साथ मुआफ़ी का रवैया इख्तियार करता है, इसलिए उसने कुरान मजीद में जा बजा इसका हुक्म भी दिया। बेशक। और आका अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ मुबारक देखिए कि आप जब फ़तह मक्का के दिन खड़े हैं, वो वहशी आपके सामने आता है और उसे कोई लेके आता है कि ये शर्मिंदा है और कलमा पढ़ने को तैयार है, और आका अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो मंज़र आ जाता है किस तरह हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके चचा का किस तरह से उन पर जुल्म सितम किया गया बद्र में। मगर देखिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने बड़े उसके जुल्म सितम के बावजूद, हैवानियत के बावजूद, न सिर्फ मुआफ़ फरमाया, उसका कलमा कबूल फरमाया, मुआफ़ कर दिया, बस इतनी बात की कि मेरी आंखों के सामने ना आना। अब ये जो आका अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ है, ये आपकी कैफियत को ज़ाहिर कर रहा है कि आपको तकलीफ़ कितनी थी, मगर इसके बावजूद भी आपने इंतकाम लेने की बजाय मुआफ़ी को तरजीह दी। तो हमें चाहिए कि हम अपने गिरदो पेश में, और अक्सर रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हम छोटी छोटी बातों पे अपने ताल्लुक़ ख़त्म कर बैठते हैं। तो मुआफ़ करना सीखिए, रिश्तों को बचाना सीखिए, रिश्तों को निभाना सीखिए। बहुत शुक्रिया सर अशल, थैंक यू सो मच बेटे, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। और जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ रौनक रमज़ान की रौनक बने रहते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग की वजह से ही ये रौनक है। सिर्फ आखिरी जो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू शाह साहब ने फरमाई कि हमने अपने बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे ताल्लुक़ सिर्फ इसलिए छोड़ दिए कि हमारी नहीं बनती उनसे, हमें उनकी समझ नहीं आती, बात ही नहीं वो सुनते। अगर वो बात सुन लेंगे तो फिर रह क्या जाएगा। थोड़ा बढ़िए, मनाइए, अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपकी नहीं समझे तो कम से कम उनकी समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी किसी और के अंदाज में समझेंगे ना तो चीज़ें अलग अंदाज में दिखाई देती हैं। कभी कभी झुक जाना जो है ना रिश्तों को बचा लेता है।
رشتوں کو بچائیے, یہ بڑے مشکل سے ملتے ہیں, دوست تو ہم بنا ہی لیتے ہیں جناب. آج کی چھوٹی سی گفتگو میں ہم نے کوشش صرف یہ کی کہ درگزر کو آپ کو سمجھا سکیں کہ کتنا اہم ٹاپک ہے آج کا, یہ کتنا اہم مسئلہ ہے آج کا. یہ بھائی شروع سے آ رہا ہے, لیکن اس دور میں اور آنے والے دور میں اور مشکل ہوتا جائے گا, جہاں ہم بچوں کو قتل کر رہے ہیں, جہاں ہم اپنی فیملیز کو قتل کر دیتے ہیں, انا کے اوپر, اپنے غصے کے اوپر, اپنی عزت کے اوپر آ کے ہم مار دیتے ہیں انہیں. اس سب کو درگزر کرنا ہی, اور اس کو انسان ہوتے ہوئے ان کی غلطیوں کو غلطی مانتے ہوئے انہیں معاف کر دینا ہی, یہی تو ہے انسان ہونا جناب. سعدیہ امام کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل رونق رمضان میں, نئے ٹاپک, نئے مہمان, نئے لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.